اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 درس مکمل ہوئے ہیں، چوتھا درس آج آغاز کرنا چاہ رہا ہوں۔ درس گزشتہ میں یہ بیان ہوا وہ حروف ناخواں کے حوالے سے بیان ہوا، وہ حروف جنہیں لکھے گئے ہیں لیکن پڑھے نہیں جاتے ہیں۔ وہ 7 حروف تھے جن کا ذکر ہوا، انہی کے ساتھ اکثر و بیشتر کتابوں میں یہ بیان نہیں ہے، لیکن معلومات کے لیے بہرحال بہتر ہے اگر بیان کیا جائے۔ وہ یہ ہیں کہ وہ حروف جو لکھے نہیں جاتے ہیں لیکن انہیں پڑھنا ضروری ہے، لکھے نہیں جاتے ہیں پڑھے جاتے ہیں، وہ حروف مدی ہے۔ 3 حروف ہیں، واو، الف، واو، یا۔ تو یہ حروف تقریباً ان کی 2 صورتیں بنتی ہیں۔ ایک وہ مقامات ہے جہاں پر یہ خود حروف لفظ کے جز ہوتے ہیں، لکھے نہیں جاتے ہیں لیکن پڑھنا ضروری ہے۔ دیکھیں لفظ کے جز قرار پائے ہیں، لفظ کے جز ہیں لیکن لکھے نہیں جاتے ہیں لیکن پڑھے جاتے ہیں۔ سوال آگا، یہ جز ایک کلمہ ہوتے ہوئے کیوں لکھے نہیں جاتے ہیں؟ چونکہ عرب کلام میں گزشتہ عرب بہت ہی کوشش کرتے تھے حروف کا ہمجنس حروف کا تکرار ہونے سے، کوشش رہتی تھی کہ حروف ہمجنس حروف تکرار نہ ہو جائیں۔ اسی لیے کیا کرتے تھے، جہاں کہیں پر تکرار کا مسئلہ پیش آتا تھا وہاں پر کیا کرتے تھے، تلفظ کرتے وقت 2 ہی حروف کا تلفظ کرتے تھے لیکن لکھتے وقت نہیں لکھا کرتے تھے۔ ان میں سے اس کے لیے مثلا نبیین، دیکھیں نبیین میں آپ نبیین دیکھیں شدت ہے، جبکہ یہاں پر 2 یا ہونا چاہیے، لیکن نبیین پڑھتے وقت 2 یا کے ساتھ پڑھا جاتا ہے لیکن لکھتے وقت ایک ہی یا لکھا جاتا ہے۔ یا یستوون، دیکھیں یستوون ہونا چاہیے، یستوون ایک واو لکھا جاتا ہے، 2 واو نہیں لکھا گیا ہے۔ ترا ہے، اور اس کے بعد دوسرا مقام یہ وہ حروف ہیں جو خود لفظ کے جز نہیں ہے لیکن اشباع ہا ضمیر کے مقابلے میں صورت میں وہ جو ہیں پڑھا جاتا ہے لیکن لکھا نہیں جاتا ہے۔ جیسے لہو، فیہی، لہو، دیکھیں لہو میں دیکھیں واو پڑھا گیا ہے لیکن لکھا نہیں گیا ہے۔ اچھا، یہ چیپٹر کلوز ہوا ہونے کے بعد اس کے بعد جو بحث ہے وہ اشباع ہا ضمیر کی بحث ہے۔ اشباع ہا ضمیر، اشباع ہا ضمیر، دیکھیں عزیزو، یہ اشباع ہا ضمیر کے بارے میں اشباع کا ایک معنی کروں گا آپ لوگوں کی خدمت میں۔ اشباع کا لغوی معنی کیا ہے؟ سیر کرنا، سیر کرنا۔ اصطلاح میں چھوٹی حرکات کو بڑی حرکات میں تبدیل کرنے کا نام اشباع ہے، اور یہ اشباع ہا ضمیر ہے نا، لہو، فیہی، یہ اس اور وہ وغیرہ کا معنی دیتا ہے معنی کے لحاظ سے۔ شرائط اشباع ہا ضمیر، بس اشباع کا معنی کیا؟ کھینچنا۔ اصطلاح تجوید میں چھوٹی حرکات کو بڑی حرکات میں تبدیل کرنے کا نام اشباع ہے۔ شرائط اشباع ہا ضمیر، شرائط، یہ ادھر ہی لکھیں، شرائط اشباع ہا ضمیر، کتنی شرائط ہیں اشباع ہا ضمیر کی؟ 2 شرائط یہاں پر، بلکہ 3 شرائط بیان ہوئی ہیں۔ شرائط اشباع ہا ضمیر 2 ہے۔ ایک ہا سے پہلے حرکت ہو، دیکھیں کب؟ اگر ہا سے پہلے حرکت ہو تو یہ ہا کھنچ جاتی ہے، ایک ہا کے بعد بھی حرکت ہو تو یہ حرکت کھنچ جاتی ہے۔ بس ہا ضمیر اشباع کب ہوگی؟ جب ہا سے پہلے اور بعد میں حرکت ہو۔ جیسا لہو فی لہو، لہو ما فی، دیکھیں لہو ہوگا، لہو ما فی السماوات، ما فی السماوات، دیکھیں ہو سے پہلے بھی زبر ہیں بعد میں بھی زبر ہیں، تو پہلے بھی بعد میں بھی حرکت ہے جس کی وجہ سے ہو کو کھینچا گیا ہے، لہو کہیں گے، لہو نہیں لہو کہیں گے کیونکہ کھینچ کر پڑھیں گے۔
इशबा अदम हा ज़मीर क्या हैं? इशबा अदम हा ज़मीर के इशबा न होने के 3 मवारिद हैं, 3 शराइत हैं। पहली शर्त क्या है? हा ज़मीर से पहले कोई साकिन हो। हा ज़मीर से पहले साकिन, देखें जैसा फी ही नहीं कहेंगे, फी ही कहेंगे। क्यों? हा से पहले यहाँ साकिन है एक, हा से पहले साकिन हो एक। हा ज़मीर से क़ब्ल कोई हर्फ मद्दी न हो, हा ज़मीर से क़ब्ल कोई हर्फ मद्दी न हो। अंज़लनाहु, देखिए अंज़लनाहु नहीं कहेंगे, अंज़लनाहु कहेंगे, खींचेगी नहीं। क्यों? हा से पहले अलिफ मद्दी अलिफ है, नाम है। हा ज़मीर के बाद या साकिन या मुशद्दद कोई हर्फ न हो। तीसरी शर्त, हा ज़मीर के बाद साकिन मुशद्दद कोई हर्फ न हो। जैसा उसके लिए मिसाल क्या है? हा साकिन के मुशद्दद हर्फ न हो, मसलन लहुल्लाहु, देखिए लहुल्लाह, देखिए अल्लाह मुशद्दद हैं, हा से पहले बाद में मुशद्दद कोई हर्फ ना हो। बस ये 3 शराइत है। हा से पहले साकिन ना हो, हा से पहले हुरूफ मद्दी ना हो, हा के बाद साकिन कोई मुशद्दद हर्फ ना हो, तो ये हा ज़मीर क्या होगी? खींचेगी। अगर हा खींचेगी, अगर हा से पहले साकिन हो या हा से पहले अलिफ हुरूफ मद्दी में से कोई हो या हा के बाद मुशद्दद या साकिन हो, तो ये हा ज़मीर नहीं खींचेगी, इशबा नहीं होगी। बस इशबा की शराइत 2 है। हा से पहले भी बाद पहले हरकत हो एक, बाद में भी हरकत हो 2, ये इशबा की शराइत। अदम इशबा यानी इशबा न होने के, न खींचने की शराइत 3 है। हा से पहले साकिन हो और हा से पहले हुरूफ मद्दी हो, हा के बाद साकिन और मुशद्दद हर्फ हो, तो ज़मीर नहीं खींचती है ये। उसके बाद कुछ इस्तिस्नायात है, इशबा हा ज़मीर की कुछ इस्तिस्नायात है। वो क्या हैं? सूरह फुरक़ान में मसलन फ़ीही मुहानन, फ़ीही में दर हकीकत में हा ज़मीर नहीं खींचनी चाहिए। क्यों? चूँकि हा से पहले साकिन है, लेकिन उलमा ने यहाँ हा ज़मीर को खींच कर पढ़ा है। कैसा? फ़ीही मुहाना, बस तिब की कायदा अदम इशबा होनी चाहिए, बोले यहाँ पर इशबा के साथ पढ़ा है। दूम हाज़ही, हा ज़मीर जुज़ कलिमा होने के बावजूद भी यहाँ इशबा होगी। देखिए हाज़ही ये जुज़ कलिमा है, लेकिन हाज़ही इशबा करके पढ़ेंगे, ये इस्तिस्नायात में से है, ये जुदा हुआ है कानून से। सुम्मा अनफ़क़हु में जुज़ कलिमा है, यहाँ पर भी इशबा नहीं होगी। चहारुम यरज़हु लकुम, यहाँ पर देखें हाथांग यरज़हु लकुम, देखें यरज़हु, देखें यरज़हु लकुम, देखिए यरज़हु लकुम, देखें हा से पहले भी बाद में भी हरकत है, लेकिन खींचनी चाहिए, लेकिन इशबा के इन्वान बिना पर यहाँ पर यही ये नहीं खींचेगी। यरज़हु नहीं कहेंगे, यरज़हु लकुम कहेंगे। उसके बाद जो बहस है वो बहस इल्तिक़ाए साकिनैन है। ये इशबा हा ज़मीर के बाद मुकम्मल हो गई। अब बहस इल्तिक़ाए साकिनैन, देखें इल्तिक़ाए साकिनैन, ये इल्तिक़ाए साकिनैन की बहस है। इल्तिक़ाए साकिनैन आपके खिदमत में तनवीन के तारीफ़ में बयान हुआ। तनवीन वो नून साकिना है जो लिखा नहीं जाता है मगर पढ़ा जाता है, ये बयान हुआ ना। होने के बाद अब इल्तिक़ाए साकिनैन इस मंज़र से आप देखिए, अगर तनवीन वाले लफ्ज़ के बाद ऐसा लफ्ज़ आ जाए जिसका पहला हर्फ साकिन या मुशद्दद हो, तो तलफ़ुज़ में 2 साकिन जमा हो जाएंगे। तो अगर इस तरह से जमा होने वाली हालत को इल्तिक़ाए साकिनैन कहा जाता है। इस इल्तिक़ाए साकिनैन को दूर करने के लिए तनवीन के नून को ज़ेर के साथ पढ़ा जाता है, जैसा लाहवनिन फद्दू इलैहि, लाहवन
देखिए लाहवन है, देखिए लाहवन वन, देखिए लाहवन है, लेकिन लाहुआ नीन फज होगा, नीन, ये देखिए नीन लाहुआ नीन फज होगा। क्यों? वन ये साकिन है, उसके बाद ये बात वाला नून भी साकिन है, दोनों इल्तिका साकिन हो रहे हैं। इस इल्तिका साकिन से बचने के लिए तनवीन का जो नून है उस नून के नीचे, चूँकि तनवीन असल नून ज़ायदा का नाम है ना, उस नून के नीचे हम क्या करेंगे, एक कसरा देकर तलफ़ुज़ करेंगे, तो क्या होगा, लाहवनिन फद्दू इलैहा होगा। बस तनवीन आप की खिदमत में बयान हुआ, तनवीन वाले लफ्ज़ के बाद एक ऐसा लफ्ज़ आ जाए जिसका इब्तिदा साकिन या मुशद्दद हो, तो तलफ़ुज़ करते वक्त इल्तिका साकिनीन होते हैं। इस इल्तिका साकिनीन से दूर करने के लिए तनवीन के नून को कसरा दिया जाता है। ये ख़त्म। आखिरी बहस जो हमारा जो बहस है वो बहस अक़साम वक़्फ़ है। ये आखिरी बहस है। अल्हम्दुलिल्लाह 4 अबहास में नाज़रे के तमाम क़वाइद मुकम्मल हो गए हैं। देखिए अक़साम वक़्फ़, देखिए वक़्फ़ के बहुत से अक़साम हैं, लेकिन नाज़रे में जो पढ़ाया जाता है ना वो ये हैं जो मुहिम है। अक़साम वक़्फ़ है, इस्कान वक़्फ़ है, इब्दाल वक़्फ़ है बिदून तग़यीर। देखिए ये अक़साम वक़्फ़ है, ये वक़्फ़ के अक़साम हैं और इनका पढ़ना ज़रूरी है। नाज़रे और तजवीद में मुफस्सल इंशाअल्लाह इसका बयान होगा, जो भी अक़साम हैं वो आपकी खिदमत में बयान होंगे। वक़्फ़ की 3 किस्में हैं। एक वक़्फ़ इस्कान। वक़्फ़ इस्कान किसको कहते हैं? वक़्फ़ इस्कान वहाँ होता है जहाँ जिस कलमे के आखिर में ज़ेर हो या ज़बर हो या पेश हो और या 2 ज़ेर हो या 2 पेश हो, तो उस वक़्त अगर आपका सांस टूट जाए, रुक जाए, तो उन्हें हटा के उस हर्फ को साकिन करके पढ़ा जाता है। जैसा अर्रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आलमीना है, लेकिन आपने क्या किया, वक़्फ़ के वजह से आलमीन नून को साकिन करके पढ़ा। अर्रहमानिर रहीमी है, अर्रहमानिर रहीम, मीम के ज़ेर को आपने साकिन करके मीम को पढ़ा है। बस इसको कहते हैं वक़्फ़ इस्कान। वक़्फ़ इस्कान वो हैं जिस कलमे के आखिर में ज़ेर ज़बर पेश या 2 पेश या 2 ज़ेर हो, तो वक़्फ़ के वक़्त साकिन करके पढ़ा जाए तो उसे वक़्फ़ इस्कान कहते हैं। ये आपके क़ल्बुन है, क़ल्ब, ज़ैदिन है, ज़ैद, ये वक़्फ़ इस्कान है और इनका रियायत अक्सर बेशतर नहीं किया जाता है, तवज्जो फरमाइए। वक़्फ़ इब्दाल है, ये वहाँ और उस कलिमे में होता है जिस कलिमे के आखिर में तनवीन ज़बर हो। अगर जिस कलिमे के आखिर में तनवीन ज़बर हो तो इब्दाल का माने तब्दील करना। क्या करेंगे वहाँ पर? वक़्फ़ के वक्त एक ज़बर को अलिफ में तब्दील करेंगे। मसलन माअन, माअन वक़्फ़ इब्दाल है, तब्दील करेंगे। वक़्फ़ में क्या होगा? माआ, ये एक ज़बर अलिफ में तब्दील होगा, माआ, वाज़ेह हो गया। माअन होगा माआ। इसी तरह से वो कलिमा जिसके आखिर में ता गिर छोटा वाला ता हो, ये वाला ता, तो वहाँ पर वक़्फ़ के दौरान क्या करते हैं, उस ता को हा सख्त में तब्दील होता है, करते हैं। जैसा रहमतन, क्या पढ़ेंगे आप? रहमा, ये मह पढ़ेंगे, तन की आवाज़ ख़त्म होगी, हा सख्त में तब्दील होगा, ये ता। उसके बाद आखिर में जो हैं वक़्फ़ बिदून तब्दील या बिदून तग़यीर, यानी जिस हालत में कलिमा है ना उसी हालत पर आप वक़्फ़ करेंगे, कोई तब्दीली नहीं आएगी। ये वहाँ होता है जहाँ पर आखिर में जमा का सीगा हो या आखिर में हुरूफ मद्दी हो या पहले से कोई साकिन लफ्ज़ हो। देखें गैरिल मग़दूब अलैहिम या ज़माइर हैं साकिन है, मसलन गैरिल मग़दूब अलैहिम, हिम पर ही वक़्फ़ करेंगे तो हिम ही होगा, कोई तब्दीली नहीं आएगा। यानी साक़ित, साक़त, इस तरह से कुछ और ऐसे, या कालू, कालू में वही कालू ही होगा, कोई तब्दीली
नहीं आएगी। आखिर में चंद नुकात, ये वक़्फ़ के अक़साम, वक़्फ़ इब्दाल, वक़्फ़ इस्कान, वक़्फ़ बिदून तग़यीर, ये 3 वक़्फ़ और इसके आभास मुकम्मल हो गए हैं। और आखिर में ये क्लियर होने के बाद आखिर में या गैरिल मग़दूबि अलैहिम क़ालू, इस तरह आखिर में नुकात मुहिम के इन्वान से कुछ नुकात की तरफ तवज्जो फरमाइए। जहाँ कहीं पर भी अगर लफ्ज़ के आखिर में मुशद्दद हो तो वक़्फ़ के सूरत में उसे साकिन पढ़ा जाएगा, लेकिन याद रखना तशदीद की हालत बाकी रहेगी, शिद्दत के साथ पढ़ा जाएगा। देखें, हमलहुन, हमलहुन नहीं कहेंगे आप, हमलहुन साकिन करेंगे, लेकिन हुन जो शिद्दत की हालत है वो महफूज रहेगी वक़्फ़ के हालत में। हमलहुन है, हमलहुन, हमलहुन कहेंगे। अगर लफ्ज़ के आखिरी हर्फ वाव मफ्तूहा हो और इससे पहले वाला हर्फ मज़मूम हो तो वक़्फ़ के सूरत में साकिन पढ़ा जाएगा, जिसके नतीजे में वाव साकिन मा क़बल मज़मूम की सूरत में पढ़ा जाएगा। जैसा मसलन हुआ में हु, हिया में ही। बस लफ्ज़ का आखिरी हर्फ वाव मफ्तूहा हो, मसलन हुआ, और इससे पहले वाला हर्फ मज़मूम हो तो वक़्फ़ करते वक़्त क्या साकिन पढ़ा जाएगा। क्या हुआ पढ़ेंगे हु, हिया पढ़ेंगे ही, हुआ हु, हिया ही। वो कलिमात जहाँ हर्फ मुशद्दद मा क़बल मज़मूम या मकसूर हो तो वक़्फ़ के वक्त मुशद्दद के साथ पढ़ा जाएगा। तो ये वक़्फ़ के हालात की तरफ कुछ इशारा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुख्तसर और कोशिश हमने कर ली है कि तकरीबन 4 दर्स में 20-20 मिनट के 4 दर्स हुए हैं। 4 दर्स में तमाम क़वाइद नाज़िर तिलावत के तमाम क़वाइद बयान हुए हैं और तकरीबन 4 ही वरक़, 3 या 4 वरक़ बनते हैं, बयान हुए हैं। उम्मीद है आप इन ही मबाहिस में आप थोड़ा सा बिलखुसूस अब आपकी खिदमत में आगाज़ में बयान भी हुआ है, वरत्तिल कुरान तरतीला, ये है मुनासिब जगहों पे वक़्फ़ करना। वक़्फ़ के अहकाम की तरफ जहाँ कहीं पर सांस रुकता है तो कौन सा वक़्फ़ है, कैसा वक़्फ़ है, उन चीज़ों की तरफ आप मुलाहिज़ा फरमाएँ। और उसके अलावा जो कुछ क़वाइद बयान हुए बिलखुसूस इनमें वक़्फ़ और ख़ुद हरकात की जो बहस है, हरकात के बहस की तरफ बहुत ही तवज्जो फरमाएँ। और उसके अलावा अक्सर बेशतर जो इश्तिबा कर जाते हैं वो क्या है, सुकून और शिद्दत है। सुकून को नरमी से, शिद्दत को शिद्दत और मुहकम से अदा किया जाता है, उसमें भी अक्सर बेशतर रियायत नहीं फरमाते हैं। बस कुरान नाज़रा पढ़ने वाले बच्चे बच्चियां सब से ये गुजारिश है इन क़वाइद में थोड़ा सा दिक्कत फरमाएँ कहीं, और दिक्कत फरमा के इंशाअल्लाह ताला प्रैक्टिकल करें और हरकत को कशिश ज़्यादा करने की कोशिश न करें, अपनी हालत पे रखें। वक़्फ़ के मुनासिब मवारिद में आप वक़्फ़ किया करें। और अगर सांस टूटता है तो फिर तरीक़ा क्या है, ऐसी जगह जहाँ वक़्फ़ की जगह ही नहीं है तो उसी जुमले को एक मुनासिब जुमले माक़बल मुनासिब जुमले से शुरू किया जाता है। ये तमाम चीज़ों का इंशाअल्लाह ताला रियायत फरमाएँ। कम वक्त में आप आराम से नाज़िरा के तमाम क़वाइद पे उबूर हासिल, महारत हासिल कर सकते हैं। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन।